Hello friends, hello children, I hope you are fine there. So today we will learn a thing of beauty, and this is a poem, and this is an important poem, and this poem is composed by, written by a romantic poet John Keats. So in this poem, what theme poet has talked about, let us learn. आवर लाइफ, ये जिंदगी, हम लोग की ये दुनिया की जिंदगी जो है पेन, परेशानी, ट्रबल्स, सफरिंग, सैडनेस से भरा हुआ है. What we expect, we generally don't get, and there comes problems, there comes struggles. So poet tells us in this poem कि in your sad moment, in your critical moment, when your mind is very upset, you should focus on, you should look at the beautiful nature. Your nature, surroundings. Sometimes nature can give you calm and peace. What your world fails to give you, when sometimes your world, your expectation cannot fulfill, cannot satisfy you, it tells, look at nature. There are some thing of beauty, and this thing of beauty may give you immense pleasure. तो एक थीम तो ये है, जब हम लोग की जिंदगी ट्रबल से भरा हुआ होता है, तो चलो देखते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी. नेचर में कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी है, उस पर फोकस करते हैं. थिंग ऑफ ब्यूटी हमें हैप्पीनेस देंगे. Another theme poet tells us that there is always a difference between right and wrong. Right and wrong. Right always brings negativity in our life. Wrong always brings negativity in our life. But if you are in truthful condition, if you are in righteous condition, then it will give you what? Immense joy. So, in this poem there are some poetic devices also. Thematic devices, we will learn there are different themes. We will learn poetic devices. We will learn that, very typical meaning of this. Okay. And then at last, we will learn some question answering. But we will learn all the things step by step, यानी कि part by part. तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक स्मॉल पोएम है और ये क्लास 12 का सब्जेक्ट मैटर है. तो ये पोएम को पोएट ने कहाँ से लिया है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है. ये पोएम को पोएट ने उठाया है, उन्हीं की बुक है, उनका नाम है एंडीमियन. एंडीमियन एक रोमांटिक पोएटिक्स है, रोमांटिक पोएम्स है, और उस रोमांटिक पोएम से ये थिंग ऑफ ब्यूटी को उठाए हैं. ओके. इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, दैट मीन्स जब ये पोएम लिखा है तो फिर उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुआ है, दैट मीन्स कंट्रास्ट थिंग हुआ है, दैट मीन्स कन्फ्लिक्ट हुआ है कि ये पोएम it is poets only for loving matter or this and that, but afterwards, after his death, poet's death, that means all those critics comes to know that whatever John Keats has given, perhaps there are some particular poet who can give such kind of high level of thought, such a good idea. So let us learn that what does tells. If we learn it systematically, then we will see that the first line of this poem, first line में poem ये कहाँ है कि a thing of beauty is a joy forever. First line. Look at the book here. Some things I keep in mind, and a thing of beauty is a joy forever. Joy forever. You see here, joy, word joy. Joy is something which gives you happiness. It's not a pleasure. You see, there is a difference between joy and pleasure. Joy or happiness, and but pleasure is somewhat temporary joy, instant joy. जब तक आप उसको फील करोगे तब तक आपके प्लेजर है, जब आपका जो है वो चीज़ नहीं रहेगा, then it is now lost. But joy or happiness is such a thing, such an status, such a condition that you can enjoy, that you can feel forever. It's not temporary, it's
परमानेंट। ओके, सो द थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये हमेशा के लिए जॉय है। यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी कोई भी चीज हो सकता है, या तो रोज फ्लावर हो सकता है, या तो फिर समुंदर की जो तरंगे हो सकते हैं, राइट, जो आपको खुशी देती हैं, राइट, वही चीज थिंग ऑफ ब्यूटी है। यानी कि किसी की क्यूट बेबी की स्माइल, एक नेचर से एक ले लो, फिर क्यूट बेबी की स्माइल अगर आपको हंसा दे, आपके दिल को टच कर जाए, तो फिर आई विल से दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ओके, नाउ इट इज जॉय फॉर एवर मीन्स ये हमेशा के लिए इन द सेंस दैट मीन्स जब जब whenever any person comes to such a thing, then that person will always feel happy. You see, एक छोटा बेबी की हंसी देख के जो आज हम खिलखिला रहे हैं, आज हम हंस रहे हैं, आज हम उसको हैप्पी फील कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि वही क्यूट स्माइल देख करके 50 साल बाद भी कोई भी बंदा मेरी जगह पे वही उनका फीलिंग होगा। आज से 50 साल पहले की लाइफ में भी वही क्यूट स्माइल देख करके कोई बंदा खुश तो हो गया होगा। यानी कि रोज फ्लावर को ले लो आप, रोज फ्लावर की जो है जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन कल भी लोगों को हैप्पी किया करता था, आज भी करते हैं, और फिर टुमारो नेक्स्ट जनरेशन में भी यही करेगा। दैट मीन्स समथिंग विच इज gives us something which gives us joy, happiness, good feel, good vibes. I will say that's a thing of beauty. Simple idea. What is thing of beauty? Thing of beauty is a joy forever. That means वो एक ऐसी चीजें हैं, किसी की स्माइल भी हो सकता है, किसी की आई ब्लिंकिंग भी हो सकता है, किसी की मेलोडियस ट्यून भी हो सकता है, राइजिंग सन भी हो सकता है, ओके, किसी का जिगजैग वे ऑफ वॉकिंग भी हो सकता है। पोएट तो यहाँ पे नेचर में सिर्फ जो है कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में जिक्र किया है, बट आई एम टेलिंग देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन आवर लाइफ, देयर इज ए फुल ऑफ ब्यूटीज, थिंग ऑफ ब्यूटी, लाइफ में फुल ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी भरा हुआ है। किसी की आंखों की जो है क्या नाम है, किसी की आंखों की जो है वे ऑफ वॉचिंग को आप देखो, किसी को वे ऑफ टॉकिंग को देखो, किसी की मोटिवेशनल वर्ड को देखो, अगर वो आपको टच कर जाए, वो आपको हैप्पीनेस दे दे, तो वही थिंग ऑफ ब्यूटी है। आ जाओ, सेकेंड लाइन में पोइट ने क्या कहा है? सेकेंड लाइन में पोइट ने कहा है इट्स लवलीनेस ऑलवेज इंक्रीजेस। थर्ड लाइन इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। यानी कि फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन है, सेकेंड और थर्ड लाइन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी फीचर्स यानी कि इसकी स्पेशल क्वालिटीज है। इसके दो नेचर हैं, दो फीचर है। क्या है? जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है उसकी लवलीनेस, उसकी तारीफें, उसकी कदर हमेशा क्या होता है? बढ़ती रहते हैं। उसकी कदर हमेशा बढ़ती रहते हैं। लाइक दिस, आप किसी थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में चर्चा करो, किसी के सामने भी चर्चा करो, या फिर वो फिर और 10 लोगों के सामने वो बताएगा। यानी कि क्यूट बेबी, दैट बेबी की क्यूट स्माइल जो है वो आप किसी के बारे में सोचो। सपोज मिसेस XYZ की बेबी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है, उसको एक बार आप किसी के सामने बोलो, बाय द वे आपके सामने कभी आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? आप खुद देख के फिर क्या हो जाओगे? आप हैप्पी हो जाओगे। आप उस चीज को फिर बताओगे, राइट? मतलब वो जो क्यूट स्माइल जो भी बंदा देखेंगे, जो भी बंदा एक बार उनके कांटेक्ट में आएंगे, क्या करेंगे? वो मुस्कुराएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे तारीफें करेंगे। आई एम टेलिंग यू, पोएट भी कह रहे हैं, अगर वो बेबी की स्माइल अगर रियली थिंग ऑफ ब्यूटी है तो उसकी नेगेटिव वाइब कभी होगा ही नहीं। अरे थिंग ऑफ ब्यूटी ले लो, कौन सा थिंग ऑफ ब्यूटी? नेचर में अवेलेबल है, ब्लूमिंग फ्लावर ले लो। नेचर में अवेलेबल है ब्लूमिंग फ्लावर ले लो, एंड देन यू विल सी व्हाट, वाओ वंडरफुल। अरे जिसके पास नजरिया है, दैट मींस ये पोएट फिर और एक डेफिनेशन कहाँ है, क्या कहाँ है पता है आपको? ब्यूटी लाइज इन योर आइज, ब्यूटी लाइज इन बिहोल्डर्स आइज। किसी चीज को देख के वो थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकता है अगर उनके देखने की नजरिया ऐसा है। अगर किसी की आंखों में ब्यूटी नहीं है तो चाहे कितना भी थिंग ऑफ ब्यूटी, कितना भी अट्रैक्टिव चीज लाके उनके सामने प्रेजेंट कर दो, कभी क्या नहीं कहेगा? थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं कहेगा। तो यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? एक टेस्ट ऑफ माइंड भी है। और थिंग ऑफ ब्यूटी का जो सेकेंड नेचर है वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर थिंग ऑफ ब्यूटी है तो वो कभी नेगेटिव मीनिंग नहीं लाता है। थिंग ऑफ ब्यूटी की नेगेटिव इंपैक्ट कभी नहीं आता है। आ जाओ इस पोएम में फिर जो है नेक्स्ट फिफ्थ लाइन में पोएट कह रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी हम लोग की बॉडी में, फिजिकल बॉडी में
क्या असर करता है पता है आपको? पोएट का ये एक जॉन कीट्स का एक बहुत बाखूबी एक क्वालिटी है कि उनकी हर सारे पोएम में, हम लोग जब मास्टर क्लास में पढ़ते थे तो फिर हमारे एक पोइट्री के टीचर हुआ करते थे, तो वो टीचर हम लोगों को यही बताते कि रोमांटिक पोएट्स में से जॉन कीट्स एक ऐसी पोएट है, रोमांटिक पोएट्स में से जॉन कीट्स एक ऐसी पोएट है कि जो हम लोगों की 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हम लोग की 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। पोएट कोई चीज को एंजॉय किया करते थे ओनली आंखों से नहीं, बल्कि 5 सेंस ऑर्गन से पोएट एंजॉय किया करते थे। और पोएट का एंजॉय करना यानी कि रीडर के सामने बिल्कुल उसी लहजे से प्रेजेंट किया कर देते थे। आ जाओ, अभी तो हमने बस आंखों से भी नजारा नहीं दिखाया है, बल्कि पोएट 4th लाइन में हम लोग की बॉडी पे एक असर दिखाया है, ह्यूमन बॉडी पे असर दिखाए हैं। पोएट ने यहाँ पे कहा है जॉन कीट्स कि जब कोई बॉयज एंड गर्ल्स थिंग ऑफ ब्यूटी का जब जो है वो इम्पैक्ट उसके ऊपर, इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होता है, यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी के कांटेक्ट में कोई बंदा आता है या आती है, तो फिर क्या होता है? और स्वीट ड्रीम, साउंड स्लीप, क्वाइट ब्रीदिंग्स एंड डीप ब्रीदिंग, साउंड स्लीप, क्वाइट ब्रीदिंग, स्वीट ड्रीम्स एंड है क्या है? एंड नो टेंशन। सबसे पहले तो थिंग ऑफ ब्यूटी आपको इतना पॉजिटिव वाइब देता है, तुरंत के लिए क्या होता है? आपके मन में जो फियर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, रिप्लेस हो जाता है। जब इंसान के मन में से टेंशन, फियर रिप्लेस हो जाएगा तो बाकी का तो वो नॉर्मल फील होगा ना। तो दैट मीन्स ये नॉर्मल फीलिंग आज के डेट में किस चीज का फीलिंग है पता है? ये थिंग ऑफ ब्यूटी का इम्पैक्ट है। यानी कि थिंग ऑफ ब्यूटी की कांटेक्ट में जो भी कोई बंदा आता है तो फिर बंदा क्या होता है? सबसे पहले बेसिक चीज क्या होता है? हैप्पी हो या ना हो, नॉर्मल जरूर होगा। नॉर्मल जब होगा तो फिर देयर विल बी ए साउंड स्लीप, गहरा स्लीप होगा, सोएगा वो, नॉर्मली उसका बेहतरीन नींद लगेगी। फिर दैट मीन्स सोने के बाद जब बॉडी चंगा हो जाएगा, चंगा यानी कि रिलैक्स्ड हो जाएगा, यानी कि फ्रेश होगा, तो फिर क्या होगा? उसका डाइजेशन क्लियर होगा, ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा? नॉर्मल होगा, ब्रीदिंग्स नॉर्मल होगा, क्वाइट मीन्स कंप्लीट ब्रीदिंग्स होगा, ब्रीदिंग में कोई झंझट नहीं होगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो स्ट्रेस इन ब्रीदिंग्स, टेंशन वाली ब्रीदिंग्स नहीं होगा, पसीना वाली ब्रीदिंग्स नहीं होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग्स होगा। नॉर्मल ब्रीदिंग्स यानी कि हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन मीन्स इन नॉर्मल लाइफ। जब इंसान नॉर्मल लाइफ में आता है ना बेटा, तो फिर क्या होता है पता है आपको? वो पॉजिटिव सोचता है, वो स्वीट ड्रीम देखता है। यहाँ पे जो वर्ड पोएट ने यूज किया है 4th लाइन में कि स्वीट ड्रीम्स, स्लीप, ब्रीदिंग्स, हेल्थ, ये सारे क्या है जानते हो? बॉडी पे इम्पैक्ट है। हेल्थ होना भी किसी थिंग ऑफ ब्यूटी का इम्पैक्ट है। किसी थिंग ऑफ ब्यूटी के कांटेक्ट में आ जाओ आप, तो आपका फियर, टेंशन, स्ट्रेस माइंड में से हट जाएगा। जब ये सब चीज हट जाएगा तो फिर क्या होगा? आपका सोना अच्छा होगा, यू विल हैव ए गुड स्लीप। जब गुड स्लीप होगा तो फिर क्या होगा? यू विल लीड ए नॉर्मल लाइफ। जब आप नॉर्मल लाइफ लीड करोगे तो फिर क्या होगा? नॉर्मल लाइफ लीड करोगे तो फिर आप स्वीट ड्रीम देखोगे। यहाँ पे स्वीट ड्रीम का मतलब रोमांटिक ड्रीम नहीं है, लवली ड्रीम नहीं है, बट यस लवली इन द सेंस आप कैरियर प्लान करोगे, पॉजिटिव प्लानिंग होगा। क्या आप डॉक्टर बनना चाहोगे? क्या आप म्यूजिशियन बनना चाहोगे? क्या आप इंजीनियर बनना चाहोगे? क्या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहोगे? तो फिर आपका जो एक कैपेसिटी है, आपका जो एबिलिटी है, एबिलिटी के अनुसार अब आप सोचोगे कि मेरे पास क्या एबिलिटी है। यू विल थिंक ऑफ योर सेल्फ कि आपके पास क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, आप क्या कर सकते हो, उसी के अनुसार आप क्या करोगे? कैरियर प्लान बनाओगे। तो यानी कि कैरियर प्लान को यहाँ पे क्या रिफर किया है पोएट? स्वीट ड्रीम कहा है। कैरियर प्लान को यहाँ पे क्या कहा है? स्वीट ड्रीम। हेल्थ यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग्स, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, साउंड स्लीप के बाद हेल्थ होगा ना, यानी कि नॉर्मल कंडीशन ऑफ लाइफ को यहाँ पे हेल्दी लाइफ कहा गया है। ब्रीदिंग्स, जब आपकी एवरीथिंग नॉर्मल होगा, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा, तो फिर क्या होगा? ब्रीदिंग्स, वेल ब्रीदिंग्स होगा।
यानी कि फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन में पोएट ने यहाँ पे क्या कहा है कि बॉडी के ऊपर, हम लोग की फिजिकल बॉडी के ऊपर थिंग ऑफ ब्यूटी का क्या इंपैक्ट है, इतना इंपैक्ट है। ओके, देयरफॉर पोएट अब कह रहे हैं, देयरफॉर वी आर रीडिंग ए फ्लावरी बैंड। फिफ्थ लाइन में पोएट यहाँ पे यूज किया है देयरफॉर वी आर रीडिंग, रीडिंग WRETHING, रीडिंग मीन्स बाइंडिंग या फिर ज्वाइनिंग। देखो ये आ जाओ, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल पोएट यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कंपेयर किया है ऐसे, ये आपका ये फ्लावर है, ठीक है, वी आर, यहाँ पे वी कौन है, वी ह्यूमन बीइंग है, वी ह्यूमन बीइंग। पोएट कह रहे वी आर रीडिंग, वी आर बाइंडिंग ए फ्लावरी बैंड, वी आर बाइंडिंग ए फ्लावरी बैंड, वी आर बाइंडिंग ए फ्लावरी बैंड टू जॉइन अस। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में हम लोग क्या करते हैं, इस दुनिया में हम लोग जो है, हम लोग यानी कि यहाँ पे पोएट हम लोग दैट मीन्स आई एम ए फ्लावर, यू आर ए फ्लावर। तो दैट मीन्स आपके साथ मेरा कुछ अनबन हुआ, टेंशन हुआ, जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए हम लोग अलग हो गए हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए हम लोग अलग हो गए। पोएट कह रहे हैं कि नो, इस दुनिया में कुछ ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी है, ऐसी वजह है जो कि हम फिर दोबारा एक दूसरे के साथ ये समाज में फिर मिल जाते हैं। सपोज आपके पापा और मेरे पापा के साथ किसी वजह से एक टेंशन हुआ, टेंशन होने की वजह से रैपिशिनो शुरू में तो ये लगा कि रैपिशिनो ना वो उनका शकल देखेंगे ना उनका शकल देखेंगे, इतनी एनिमिटी डेवलप हो गया। फिर बाद में जब जो है रैपिशिनो पहले का दोस्ती है, जब हमने कुछ एक बहुत बड़ा सा कुछ अचीव किया, राइट, जब सारे लोग जब मेरे घर पे पापा के साथ मिलने आए, बधाई देने आए, तो फिर क्या हुआ, और मेरे पापा ने फिर आपको भी बुलाया, रैपिशिनो आपके पापा को भी बुलाया, इन्वाइट किए, तो फिर उन्होंने भी सोचा है कि नहीं यार, आज सब लोग आ रहे हैं और अगर हम अकेले नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, सारे लोग हम यही कहेंगे कि क्या यार अनसोशल इंसान है, समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए भी जो है एक अनमैच्ड पर्सन बन के रहते हैं, जी रहे हैं, तो फिर क्या होगा, नहीं, हालांकि मेरे इस अचीवमेंट में वो खुद आएंगे, आके बधाई देंगे हमें और बधाई देंगे रैपिशिनो ये जो मेरा अचीवमेंट है वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो मैं ये थिंग ऑफ ब्यूटी की वजह से दोनों लाइफ क्या हो गया, फिर दोबारा जो है ये सामाजिक जीव, सामाजिक समाज में ये जो बंधन है, ये बंधन का नाम है ह्यूमैनिटी, ये बंधन का नाम है, ये जो थ्रेड है, ये है ह्यूमन लाइफ, समाज है, ह्यूमैनिटी। हम लोग फ्लावर है, ह्यूमन है, और ये ह्यूमैनिटी की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ये थिंग ऑफ ब्यूटी का इम्पैक्ट है, Therefore, we are reading a flowery band on every tomorrow. Every morrow means here, every morrow का मतलब होता है every day. Every morrow means every tomorrow. Every tomorrow refers to that, you can say that every day. इसीलिए हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका that means therefore we are reading a flowery band to bind us onto this earth. Now next line में पोएट कह रहे हैं, in spite of, पोएम का पेज ओपन करो, नेक्स्ट लाइन आई थिंक 6th और 7th लाइन में ये दिया हुआ है, in spite of despondency. Now अब हम आपको ले चल रहे हैं उस स्पेस पे जहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि our life is surrounded by troubles, our life is surrounded by pain and suffering. तो ये बताओ इस पोएम में क्या क्या चीज डिफाइन किए हैं। इस पोएम में ये बताए हैं कि देयर आर सम कॉजेस ऑफ सफरिंग इन स्पाइट ऑफ। नाउ अब वो लाइन आ रहे हैं, क्या है, इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी मीन्स डिसअपॉइंटमेंट मीन्स हताश होना, निराश होना। होप है और होप फुलफिल ना होना, आपको ना मिलना, कोई चीज के लिए आप आशा कर रहे हो, ठीक है, ये चीज हमें मिलेगा, ये चीज हमें मिल जाएगा, बट अगर वो चीज ना मिले तो जो ये निराश होना उसको डिस्पोंडेंसी कहा जाता है। तो ये हम लोग की लाइफ में आम है, डिस्पोंडेंसी, फिर डिसअपॉइंटमेंट, अनहेल्दी डेज मीन्स। अच्छा ये बताओ जिंदगी में रहना है तो फिर हॉस्पिटल में देखो कितने लोग रोते हुए घर आ रहे हैं, कितने लोग ट्रबल में जी रहे हैं, कितने लोग जो है क्या चल रहे हैं, इंजेक्शन चल रहा है, कितने लोग ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो आवर लाइफ इज फुल ऑफ अनहेल्थ, सबके साथ हेल्दी डेज नहीं होता है, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी डेज। दैट मीन्स अनहेल्दी डेज मीन्स हम लोगों की लाइफ भी क्या हुआ है, भरा हुआ है, कवर्ड अप है, फुल फील्ड है, किससे, डिसऑर्डर, डिजीज से। हम लोग की लाइफ में क्या है, ग्लूमी डेज है, कभी सैडनेस है, कभी टेंशन है, कभी फियर है,
किसी का इंसाइट है, ये सब लोग हम लोगों की लाइफ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। कभी बेटा बेटी ने कुछ कहा है तो कभी जो है स्पाउस ने कुछ कह दिया तो फिर एक टेंशन है, तो इसको ग्लूमी डेज में काउंट करो। ग्लूमी डेज मीन्स सैड डेज, ग्लूमी डेज मीन्स ब्लैक डेज, ग्लूमी डेज मीन्स अनएक्सपेक्टेड अनहैप्पीनेस, अनएक्सपेक्टेड सफरिंग, ओके। तो अनहेल्दी डेज मीन्स लाइफ इज फुल ऑफ अनहेल्दी सिचुएशन, डिसऑर्डर, डिजीज एक्सेट्रा, ठीक है। ग्लूमी डेज रिफर्स टू सैड डेज, sorrowful days because of some insight, because of some tension, because of some unexpectations, okay। and poet says सबसे बड़ी घातक चीज वो है and the cruelty of noble persons। पोएट यहाँ पे एक बहुत रियलिस्टिक एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, हम आपको बताते हैं। क्रुएलिटी मीन्स अनकाइंड एटीट्यूड। अनकाइंड एटीट्यूड कौन शो करता है? जो हमें क्या होता है, हमें जानते हो, ट्रबल होता है, हमें पेन होता है, हमें अनहैप्पीनेस आता है। कब पता है आपको? जब हमारा दोस्त जिनको हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, जब हमारा दोस्त जिसको मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया वो मिस्टर XYZ, वो गोपाल है, ठीक है। वो गोपाल ने मुझे इतना जेंटिलिटी दिखाया है और उनकी जेंटिलिटी को देख करके, उनकी सॉफ्टनेस को देख करके मैंने आज उनको बिजनेस का पार्टनर बनाया। 1 महीना 2 महीने बाद मैंने कभी फॉरेन कंट्री में फैमिली ट्रिप में गए और सब कुछ पासवर्ड वगैरह सब कुछ मैंने छोड़ दिया इनके ऊपर, ठीक है। 10 दिन बाद जब हम लैंड कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें पता चला है कि जो है अब शॉप का बिजनेस का जो है ग्रोथ जो है वो डाउन होता जा रहा है। कुछ दिन बाद और बीता, कुछ दिन बाद पता चला है कि मेरा दोस्त ने जो है धोखा दे दिया हमको, राइट। तो जब इसने धोखा दे दिया तब मुझे लगा है कि दैट ओ द क्रूएलिटी ऑफ अनकाइंडनेस ऑफ नोबल पर्सन्स। तो इस दुनिया में देखो ये पर्सन की आज कमी नहीं है। एक हैंडसम पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको आ करके इतना प्रोमिसेस करेंगे, इतना आपको शायद फेयर ट्रीटमेंट करेंगे, आप समझ नहीं पाओगे कि विद इन ए मंथ वो बंदा कैसे बदल जाएगा। आपके साथ जो है आपके कुछ वैल्यू पॉइंट लेकर के, आपका इंफॉर्मेशन लेकर के, आज यही चीज हो रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में। यही चीज देखो, कॉर्पोरेट सेक्टर में इतनी सारी चीजें हो रही है। यानी कि इवन की पार्टनर्स में, इवन की पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी यही चीज हो रहा है। मीन्स इवन की मोस्ट ट्रस्टवर्दी सन को, मम्मी पापा ने जो ट्रस्टवर्दी सन को अगर कभी विश्वास किया तो फिर इतना ज्यादा जो है वो क्या होता है, कभी शायद फीलिंग देते हैं, कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ला के देता है कि यू कांट इमेजिन कि वो सन ऐसा बदल सकता है। तो पोएट यहाँ पे ये चीज डिस्क्राइब किए हैं कि दैट मींस आवर लाइफ इज, ये दुनिया फुल ऑफ सफरिंग है, पेन है, कभी बीमारी है, कभी सैडनेस है, कभी फ्रेंड्स की, कभी अपनों का धोखा है। फिर भी कोई पोएट कह रहा है कि इवन देन, पोएट कह रहा है कि इवन देन इन स्पाइट ऑफ दिस वी मेड फॉर सर्चिंग। ये देखो, ये इंसान है, हम लोग इंसान हैं, हम लोग की क्वालिटी है कि हम लोग जब जो है धोखा खाते हैं, हम लोग जब ट्रबल्स में आते हैं, टेरिफाइड होते हैं, तो उस वक्त हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा चीज मिल जाए जो हमें तसल्ली दे, जो हमें कंसोल करे, जो हमें प्यार करे, जो हमें लव करे, मोटिवेट करे, जो हमें फिर इंस्पायर करे। यानी कि जब हम लोग बहुत ही डिस्पैरेट कंडीशन में होते हैं तो फिर उस वक्त वो कह रहे हैं कि वी सर्च फॉर समथिंग, और वो जानते हैं वो क्या चीज़ है। उस वक्त जब हमें मोटिवेट करने के लिए सामने आता है, या उस वक्त जो हमें फिर दोबारा पॉजिटिव वाइब देता है, या उस वक्त जब फिर दोबारा हमें जो है हेल्दी हीलिंग करता है, तो वही चीज पोएट कह रहे हैं कि वही चीज थिंग ऑफ ब्यूटी है, वही चीज थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड पोएट अपनी भाषा में ये कह रहे हैं कि सच इज द, अब थिंग्स ऑफ ब्यूटी के नाम एक एक बाद ले रहे हैं, एंड सच इज द सन मून ट्रीज, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, एंड ओल्ड एंड यंग ट्रीज, ये सब नेचर में देखो दैट मींस सन सेटिंग के टाइम देखो कितनी थिंग ऑफ ब्यूटी है, सन राइजिंग के टाइम में देखो कितना जो चेंजिंग कलर जो है ये ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इट गिव्स ए वंडरफुल इम्पैक्ट। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। पोएट और कह रहे हैं कि दैट मींस और चीज देखो, दैट मींस जो कोई बिग ट्री है
ब्रांचेस वाला ट्री है, तो वो ट्री जब शेड बना करके रहता है, तो हॉट सीजन में वो सिंपल शीप के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जॉय फॉर एवर। हॉट सीजन में थिंग ऑफ ब्यूटी है। हॉट सीजन में कौन हॉट सीजन में वो करते हैं, दैट मींस हाँ, यंग प्लांट का जो शेड है वो है। इसी तरह डैफोडिल से रास्ते में, दैट मींस रास्ते में जो वायलेट कलर का जो फ्लावर्स है, अननोन फ्लावर्स, जो सो कॉल्ड अननोन फ्लावर्स है, वो इट टेल्स दैट दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। नॉट ओनली दिस, मस्क रोज इन द डेंस फॉरेस्ट, और एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। पोइट कह रहे हैं कि घना जंगल बोले तो डीप फॉरेस्ट मीन्स ग्रीन बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का जो वो है, सॉरी रेड कलर का जो बेटा रोज है, मास्क रोज है, बैकग्राउंड डीप है, मास्क रोज है, उसको देखो आप तो थिंग ऑफ ब्यूटी नजर आएगा। फिर आपका दिल जो है क्या हो जाएगा, हाँ, हैप्पी हो जाएगा, आप यू विल बी हैप्पी। नाउ द नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, such is the grandeur of the domes and the great deeds. That means पोएट कह रहे हैं कि जो लोग आज की डेट में मर गए हैं, martyrs, those who are the martyrs, those who died before, okay, those who great personalities. जब भी कभी हम ग्रेट पर्सन के बारे में सोचते हैं, माइटी डेड, यहाँ पे माइटी डेड किसको कहा गया है, माइटी मीन्स पावरफुल डेड। दैट मीन्स जब कभी कोई इंसान जो है, दैट मीन्स कोई पावरफुल एक्शन कर देता है, एक पावरफुल कंट्रीब्यूशन देता है, और फिर जो है उन लोगों की जो दैट मीन्स डेथ होता है, तो फिर हम लोग उसको क्या करार देते हैं, मार्टियर्स कहते हैं। तो मार्टियर्स की लाइफ को हम जब पढ़ेंगे, वेन एवर वी रीड मार्टियर्स लाइफ, ग्रेट माइटी डेड की लाइफ, जब माइटी डेड रिफर्स टू व्हाट, मार्टियर्स लाइफ, ग्रेट पर्सनालिटीज लाइफ को जब हम पढ़ेंगे तो इट विल गिव ए पॉजिटिव वाइब्स। तो ये क्या आपका थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट कह रहे हैं कि दैट थिंग ऑफ ब्यूटी अगेन